رات کے اس وقت وہ اکیلی پیرس کی سڑکوں پر چل رہی تھی، اس پاس کا جیسے ہوش ہی نہ ہو، آنسو تعطر سے آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آج پھر اس سے ایک لڑکے نے بدتمیزی کی تھی جس پر ریسٹورانٹ میں تماشا لگا تھا، جس کی وجہ سے اس کے باس نے اسے لاسٹ وارننگ دی تھی کہ آج کے بعد اگر پھر سے یہ تماشا لگا تو وہ اسے نوکری سے نکال دیں گے۔ وہ آج کے ہوئے واقعے سے بہت زیادہ تھک گئی تھی، اسی لیے جلدی سے اپنے گھر میں داخل ہو کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ ویسے بھی کل اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور وہ پہلے ہی دن لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ آلویز صبح جلدی سے اٹھ کر یونیورسٹی کے لیے نکل چکی تھی۔ ہے پلیز آپ مجھے کلاس روم بتا سکتے ہیں کہ کہاں ہے؟ آلیزے نے اپنے سامنے کھڑے شخص سے کہا جو موبائل فون پر بزی تھا، پر آلویزے کی آواز پر اس شخص کے ہاتھ ایک دم رکے اور اس نے موبائل سے سر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے طرف نہیں پاس سے گزرتے ہوئے اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ تو حیرت میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو نہ تو اس کو مخاطب کر چکی تھی بلکہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ لوگ تو اس کے آس پاس بھی جانے سے گھبراتے تھے، پھر یہ لڑکی نہ تو اس سے گھبرا رہی تھی اور نہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ خیر، اس نے اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ کا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے؟ آلویزے نے بھی اس کی طرف دیکھا جو کہ اس سے اس کا ڈپارٹمنٹ پوچھ رہا تھا۔ آلویزے نے اسے اپنا ڈپارٹمنٹ بتایا، جس پر کین نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا، جس پر عمل کرتے ہوئے وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے آلویزے نے ایک بات نوٹ کی کہ سب لوگوں میں سے کچھ لوگ ان کی جانب حیرت اور کچھ خوف سے دیکھ رہے تھے، اور کچھ لوگ اسے اپنے آپ میں مگن دکھائی دیے۔ ان سب کو کیا ہوا؟ یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آلویزے نے دل میں سوچتے ہوئے کہا، پھر اپنے ساتھ چلتے ہوئے شخص کی جانب دیکھا۔ گورا رنگ، ڈارک ریڈش لب، بلیک ڈریسنگ میں، بالوں پر بھی بلیک کیپ، آنکھیں وہ نہیں دیکھ سکی کیونکہ کین نے آنکھوں پر سن گلاسز لگائے ہوئے تھے، پر وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس کی آنکھیں اس سب سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ پر اس نے یونیورسٹی کے اندر سن گلاسز کیوں لگائے تھے؟ ابھی آلویزے اس سے پہلے کچھ بولتی، کین نے ایک کلاس کے سامنے رکتے ہوئے کلاس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ یہ انسان کچھ عجیب نہیں؟ آلویزے نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کلاس میں داخل ہوئی۔ ابھی آلویزے کو کلاس میں 5 منٹ ہوئے تھے کہ کین بھی اسی کلاس میں داخل ہوا اور پہلی لائن کے لاسٹ سیٹ پر جا کر بیٹھا۔ کلاس کے پروفیسر بھی 1 منٹ میں کلاس میں داخل ہو چکے تھے۔ آلویزے نے اپنا دھیان پروفیسر کی جانب لگایا جو آج سب کا انٹرویو لے رہے تھے۔ مائی نیم از آلویزے جعفری۔ آلویزے نے آواز پر کین نے اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ہیلو مسٹر، اپنا نام بتائیے۔ پروفیسر کی سرد آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ اب اس کی جانب ساری کلاس متوجہ ہو چکی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھوں سے پروفیسر کی جانب دیکھا اور سرد آواز میں سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہی کہا، سوری پروفیسر جیک، بٹ میرا موڈ نہیں آپ سے بات کرنے کا۔ کین نے ایک آنکھ دباتے ہوئے پروفیسر سے کہا، جبکہ باقی ساری کلاس حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آلویزے کو تو وہ شریف لگا، اس لیے ہی تو اس نے اسے کلاس کا پوچھا، ورنہ اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی تھی۔ مسٹر کین ٹیکن، آپ میری کلاس سے باہر جا سکتے ہیں۔ پروفیسر کی سرد آواز کلاس میں گونجی۔ اوکے پروفیسر، ویسے بھی مجھے کلاس میں بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا تھا، کین نے مسکراتے ہوئے آواز میں کہا اور ایک نظر خود کو حیرت سے دیکھتی آلویزے کو دیکھا اور پھر کلاس سے باہر نکل گیا۔ وہ مسلسل آلویزے کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں کیوں مسلسل اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ میں اس لڑکی کی جانب متوجہ ہو رہا ہوں؟ نہیں، مجھے اس کے خون کی خوشبو نے اپنی جانب متوجہ کیا ہے۔ مجھے اس لڑکی سے دور رہنا ہوگا ورنہ میری اصلیت سب کے سامنے آ سکتی ہے۔ کین نے سن گلاسز
दोबारा पहनते हुए कहा। उस वक्त उसके आंखें लाल हो रही थी, उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत मुश्किलों से खुद को कंट्रोल करता इस वक्त यूनिवर्सिटी के सबसे सुनसान जगह पर बैठा था। उसे लग रहा था कि आलवेज़े के खून ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया है, पर शायद ऐसा नहीं था। अब ये तो आगे चल कर पता चलना था। प्रोफेसर का ख्याल दिमाग में आती ही उसकी आंखें तंजिया अंदाज में मुस्कुराए। बहुत हो गया प्रोफेसर जैक, मुझसे छुपकर दुश्मनी निभाना। अब तो तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा। कितना एटीट्यूड वाला था, मुझे उससे बचकर रहना चाहिए। वैसे उसका नाम क्या था? अलवेज़े बड़बड़ाते हुए खुद से ही बातें करते क्लास से बाहर निकल चुकी थी। केन टेकन नाम है मेरा। वो अलवेज़े से दूर रहना चाहता था, पर जब अपने दुश्मन माइकल को अलवेज़े के करीब जाते हुए देख चुका था, इसलिए जल्दी से वो अलवेज़े के पास पहुंच गया। उससे उससे अलग लग रहा था कि सुबह माइकल्स ने अलवेज़े को उससे बात करते हुए देख चुका था, इसलिए अब वो अलवेज़े के करीब होने की कोशिश कर रहा था। अब केन ने सोच लिया था कि अब उसे अलवेज़े के आसपास ही रहना होगा, क्योंकि उसके दुश्मनों ने उसे केन के साथ बात करते हुए देख लिया था और अब वो अलवेज़े को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते थे। अलवेज़े जो अपने ध्यान में मुंह में बुड़बुड़ाते हुए चल रही थी, केन की आवाज़ और उसके साथ चलना उसको हैरत में मुतबा कर दिया था। वो हैरत में केन को देख रही थी, जो बाकी सबसे तो रूट पर उससे नरम लहजे में बात कर रहा था, पर वो देख उसकी जानिब नहीं रहा था। नाइस नेम। वो और कह भी क्या सकती थी? वो तो अब तक हैरत से नहीं निकल पाई थी। तुम्हारा नाम? उसने अपने साथ चलती उस लड़की को कहा, जो उसके कांधे पर आ रही थी। गुलाबी माइल रंगा, डार्क ब्राउन आंखें, ब्लैक बाल, गुलाबी लब। वो लड़की खूबसूरती से माला माल थी। अलवेज़े ने बस सन ब्लॉक लगाया था, वरना उसे सन ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं थी। केन ने उससे नज़रें हटाते हुए अपने आसपास चलते मेकअप की दुकानों को देखा, जो इतना मेकअप लगाकर भी अलवेज़े जितनी खूबसूरत नहीं लग रही थी। उसके होठों को एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने छुआ, पर वो खुद ही अपनी इस कैफियत से परेशान हुआ था। हेलो मिस्टर टेन, व्हाट एवर। मुझसे ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, और मुझसे आप कहकर मुखातिब किया करें। अलवेज़े का तो पहले ही उसके वजह से दिमाग घुमा हुआ था, और फिर केन का उसको यूं मुखातिब करना जैसे उनकी दोस्ती को काफ़ी वक्त हो गया है, जिस पर वो उसे गुस्से से जवाब देते हुए कैंटीन में दाखिल हुई। कैन तो पहले ही अलवेज़े की हरकतों से हैरान था, और अब अलवेज़े का उसको यूं गुस्से से बात करना उसे अच्छा लग रहा था। जहां बाकी सब उससे बात करने से घबराते और खौफ का शिकार होते थे, वहीं अलवेज़े ना तो उससे घबरा रही थी और ना डर रही थी, जिसकी वजह से केन उसे नरम लहजे में बात कर रहा था। वरना जो लड़की उसकी एक नज़र के लिए मरती थी, वो तो उसे सख्त जहर लगती थी। ओके मिस अलवेज़े, मैं अब आपको तंग नहीं करूंगा, पर एक बात तो बताएं, आप मुझसे डर क्यों नहीं रही? केन ने अलवेज़े के साथ सीट पर बैठते हुए कहा। मैं क्यों डरूं आपसे? आप कहीं के बेलगेट्सियन है या वैम्पायर जो मैं डरूं आपसे? अलवेज़े ने केन की तरफ देखते हुए कहा, जो उस वक्त भी ब्लैक सन ग्लासेस में था। डियर, ब्लैक गेट्स का तो पता नहीं, पर वैम्पायर हो भी सकता हूँ। आप न्यूज़ तो देखती ही होंगी, जहाँ पर कहा जा रहा है कि वैम्पायर आज के दौर में भी हैं, इसलिए मुझसे और मीकल से दूर रहना। समझी? केन के लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो आप लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। अलवेज़े को सर्द आवाज में कहते साथ ही कैंटीन से बाहर निकल गया, जबकि अलवेज़े उसकी बातों को मजाक समझती अपने आप में मगन हो गई।
ऑलवेज यूनिवर्सिटी से सीधा कैफ़े आ गई थी और अब लोगों को उनका ऑर्डर दे रही थी। ऑलवेज यहाँ वेटर की जॉब करती थी। वो एक इकलौती थी और उसके पेरेंट्स तो वो जब 14 साल की थी तभी उनकी डेथ हो चुकी थी। तब से वो अकेली अपने घर और अपनी पढ़ाई के लिए जॉब कर रही थी। अब तो वो 18 साल की हो गई थी। पेरिस जैसे शहर में बगैर किसी डिग्री के तो वेटर की ही जॉब मिल सकती थी। इस एक्सक्यूज मी सर, आपका ऑर्डर, अलवेजे ने अपने सामने बैठे हुए शख्स से कहा जो मोबाइल फोन चला रहा था। ब्लैक कॉफी, मिकाइल ने एक नज़र अलवेजे को देखकर कहा, और अलवेजे को केन के साथ देख चुका था और इसलिए अब वो इस रेस्टोरेंट में था। ये ले सर आपकी कॉफी, अलवेजे ने कॉफी माइकल की जाने बढ़ाते हुए कहा। इससे पहले माइकल कॉफी लेता और उसका हाथ अलवेजे से टच हुआ होता। ये लो अपनी कॉफी, केन ने जल्दी से अलवेजे के हाथ से कॉफी लेते टेबल पर जोर से रखते सख्त आवाज में कहा, और अलवेजे का हाथ सख्ती से पकड़कर कुछ फासले पर ले गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि माइकल से दूर रहना, केन ने सख्त आवाज में अलवेजे से कहा, जो उस वक्त खौफ से केन को देख रही थी क्योंकि केन ने इस वक्त सन ग्लासेस नहीं लगाए थे और केन की आंखें इस वक्त लाल हो रही थी। कौन माइकल?" अलवेजे ने खौफ से पूछा। वो इस वक्त केन से बहुत डर रही थी। एक तो केन की आंखें बहुत लाल हो रही थी, ऊपर से केन का इसको यूं सख्ती से पकड़ना। अलवेजे को तो लग रहा था आज उसका हाथ गया। वैसे जैसे वही जिसे तुम अभी कॉफी दे रही थी वो है माइकल, इस दफा केन ने नरम लहजे में कहा। और एक नजर माइकल को देखा। माइकल भी इन दोनों को ही देख रहा था। केन को पता था माइकल इन लोगों की आवाज़ बहुत आसानी से सुन सकता था, इसीलिए तो उसने ऑलवेजे को एक का हाथ पकड़ा था ताकि माइकल इन दोनों की बातें ना सुन सके। तुम अभी चल रही हो मेरे साथ, केन ने कहते साथ ही ऑलवेजे को बाहर लेकर जाने लगा। रुको, मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ, और वैसे भी मेरे ऑफ का टाइम नहीं हुआ, अलवेजे ने कहा, और केन ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा। मैंने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है और इसलिए तुम अब मेरे साथ चल रही हो, इस दफ़ा केन ने ज़रा सख्ती से हाँ कहा और अलवेजे को लेकर अपनी कार में सवार होकर चला गया। तो ये लड़की मिस्टर केन टेकन की कमज़ोरी है। अब तो और मज़ा आएगा। खुल खुल में नहीं चिड़िया जो आ गई है। माइकल ने दूर जाती हुई केन की कार की जानिब देखते हुए आंखों में चमक लेकर कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें माइकल से दूर रहना चाहिए। वो अच्छा लड़का नहीं है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। केन ने बहुत ही नरम लहजे में अलवेजे को देखकर कहा। वो दोनों इस वक्त एक सुनसान जगह पर खड़े थे। केन कार से निकलकर कार की बोनट पर टेक लगाए खड़ा था। अलवेजे भी कार से निकलकर केन के साथ खड़ी हो गई, पर मुझे तो वो अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा हैंडसम भी। अभी वो माइकल की शान में और कुछ बोलती, केन की सख्त नजरें खुद पर महसूस करती उसने अपनी जबान दांतों तले दबा दी। क्या है, अब इतना खूबसूरत है तो हैंडसम तो बोलूंगी ना। खुद पर मुसलसल केन की सख्त नजरें महसूस करते हुए ऑलवेजे ने चिढ़कर जवाब दिया, हाँ खूबसूरत, तुम्हें वो कहाँ से खूबसूरत लगता है? आंखें तो पूरी है नहीं उसके पास, बड़ा आया हैंडसम। केन तो ऑलवेजे के मुंह से माइकल की तारीफ सुनकर ही चिढ़ चुका था। मैं इतना खूबसूरत बंदा उसे नजर नहीं आ रहा जो उस मनहूस माइकल की तारीफें कर रही है। व्हाट, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे सिर्फ उस लड़की की मदद करनी है, बाकी ये जो भी करे मुझे इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। केन ने खुद को डपटा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, केन ने ऑलवेजे से कहा जो बड़े गौर से उसकी जानिब देख रही थी। चलो। ऑलवेजे उसके बारे में इतना तो जान गई थी कि वो ऑलवेजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए उसके साथ कार में जा बैठी। तुम्हारा घर आ गया, केन की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में लौटी। हाँ हाँ। वो जल्दी से कार से बाहर निकली। अभी वो थोड़ी आगे गई थी कि एकदम उसने पीछे मुड़कर देखा तो केन की कार अब वहाँ नहीं थी। उसको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता? मैंने तो केन को एड्रेस बताया ही नहीं। ऑलवेज ऑलवेज हैरत से बुड़बुड़ाते हुए अपने घर दाखिल हुई। सुबह पूछूंगी इस पागल इंसान से। ऑलवेजे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, पर आंखें बंद करते ही केन का माइकल की तारीफ करने पर चिड़चिड़ा चेहरा सामने आ गया। ये बस सख्त उसके होंठों ने एक
बेसाख्ता उसके होंठों ने खूबसूरत मुस्कुराहट को छुआ। हाँ, ये शख्स मुझे भी पागल कर देगा। अलवेज़े जल्दी से आंखें बंद करती सोने की कोशिश करने लगी। इसके सोते ही कोई उसकी खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। माई हार्ट, केन ने उसके करीब जाते हुए अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हुए आहिस्ता से सरगोशी की और उसके साथ ही बेड पर बैठकर दीवानों की तरह उसके चेहरे को देखने लगा। सुबह हो चुकी थी और इस वक्त वो यूनिवर्सिटी में ख्याली में ही केन का इंतजार कर रही थी, जो अभी तक क्लास में नहीं आया था। प्रोफेसर भी क्लास में आ चुके थे, क्लास भी अब शुरू हो चुकी थी और वो अब बेजार सी प्रोफेसर का लेक्चर नोट कर रही थी। मैं आई कम इन प्रोफेसर? केन की मुस्कुराती आवाज़ पर अलवेजे के साथ बाकी सारी क्लास ने भी उसकी तरफ देखा। आज भी वो ब्लैक ड्रेसिंग में था, बस फर्क ये था कि आज उसने सनग्लासेस नहीं लगाए थे। उसकी आंखें ब्लू और ब्लैक शेड दे रही थी। मिस्टर केन, आप लेट हैं, इसलिए आप क्लास से बाहर जा सकते हैं, प्रोफेसर ने केन को घूरते हुए सख्त आवाज में कहा। सॉरी प्रोफेसर, पर आज मेरा क्लास लेने का दिल कर रहा है, इसलिए मुझे प्लीज अंदर आने दें। केन ने मुस्कुराते हुए लहजे में दांत पर दांत जमाते हुए कहा, जैसे दांतों में प्रोफेसर जैक हो। आ जाओ, प्रोफेसर जैक ने सर्द आवाज में कहा। प्रोफेसर की आवाज पर वो क्लास में दाखिल हुआ और अलवेजे की लाइन की लास्ट सीट पर जाकर बैठा। अलवेजे को उसने इग्नोर किया। वो सोच चुका था कि अगर उसे अलवेजे की मदद करनी पड़ी तो वो बस उसकी मदद करेगा, वरना वो अलवेजे से दूर ही रहेगा। वो लड़की उसके हवासों पर छा रही थी। अलवेजे तो केन की इस तरह इग्नोर करने पर शिद्दत हैरान हुई। बड़ा आया मुझे इग्नोर करने वाला, अब जरा बात करके दिखाए मुझसे है। कल तक मुझसे बात करने के लिए मर रहा था और आज देखो कैसे इग्नोर कर रहा है। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं भी जिससे मर्जी बात करूं। अब कुछ कहकर तो दिखाए मुझे, मैं भी फिर उसे इग्नोर करूंगी। केन लास्ट सीट पर बैठा बासानी उसकी बातें सुन रहा था। यूनिवर्सिटी के बंद होने का टाइम हो गया तो वो बाहर की जानिब जाने लगे। इसका कैफे यूनिवर्सिटी से 10 मिनट की दूरी पर था, इसीलिए वो पैदल ही कैफे जाती थी। अभी वो चल ही रही थी कि अचानक एक कार अलवेजी की जानिब आई। वो उस अचानक से होने वाली आफत पर वहीं के वहीं खड़ी रही और चीख मारती नीचे बैठ गई। जब उसे महसूस हुआ कि कार उसे नहीं लगी तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। केन उसके आगे खड़ा था और उसने दोनों हाथों से आगे खिड़ खड़ी कार को पकड़ रखा था। वो कार अभी भी नहीं रुकी थी, शायद उस कार का ब्रेक फेल हो गया था। इसमें बैठा आदमी भी काफी परेशान नजर आ रहा था। केन ने बहुत जोर लगाते हुए कार को वहीं रोक दिया और फिर अपने पीछे मुड़ा, जहां अलवेजे हैरान नजरों से कार को देख रही थी, क्योंकि कार इस जगह से अंदर हो चुकी थी जहां से केन ने कार को पकड़ रखा था। ये तुमने कैसे किया? कोई आम इंसान तो इस तरह नहीं कर सकता। वो अभी भी बेयकीन सी कार को देख रही थी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, केन ने अलवेजी की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। वो तो अभी तक अपनी जगह शौक में थी, इसलिए केन ने आगे बढ़कर उसे जबरदस्ती उठाया और फिर अपनी कार में बिठाया। तुमने कैसे उस कार को रोका? अलवेजे अभी भी हैरानी से केन से पूछ रही थी, जो बहुत संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। ये जानना तुम्हारे लिए इतना जरूरी नहीं, तुम्हारी जान बच गई, इस पर शुक्र करो और अब चुप करके बैठो, केन ने सर्द आवाज में कहा। क्यों क्यों मेरे लिए जानना जरूरी नहीं? तुम मेरी हर चीज में घुसते हो और मैं तुमसे कुछ पूछूं भी ना। इस दफा ऑलवेजे ने भी काफी गुस्से से जवाब दिया। केन ने सख्त नजरों से ऑलवेजे की जानिब देखा और कार उसके घर के सामने रोक दी। क्योंकि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, तुम अब जा सकती हो। जब अलवेजे खुद कार से नहीं उतरी तो केन को बोलना ही पड़ा। सही, फिर तुम्हें तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं माइकल से बात करूं या उसके साथ डेट करूं, अलवेजे ने सुकून से कहते कार का डोर खोला। तुम्हें मेरी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मैंने कहा तुम माइकल से दूर रहोगी, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। अभी वो कार से बाहर निकलने वाली थी कि केन ने बेदर्दी से उसे बालों से कैच
کھینچ کر اپنے قریب کیا اور سرد آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ الویزے تو خوف سے کین کو دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اب تم جا سکتی ہو، اور میری بات یاد رکھنا، مجھے اپنی باتیں دہرانا پسند نہیں، کین نے کہتے ساتھ ہی اس کے بالوں کے اوپر اپنے سرد ہونٹ رکھے اور فوراً پیچھے ہو گیا۔ دھت دھپ کی آواز سے کار کا دروازہ بند ہوا اور الویزے اپنے گھر چلی گئی۔ الویزے کے گھر سے اندر جاتے ہی کین بھی گار آگے بڑھا گیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، پر میں بھی کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ ڈفر تو میں ہوں نا، جو اتنی انسلٹ کے بعد بھی اسی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ وہ اس وقت خود سے لڑ رہی تھی اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کب خود سے لڑتی لڑتی اس کی آنکھ لگ گئی، اور آنکھوں کے پیچھے کین کا خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جیسا بھی ہے پر اچھا ہے۔ وہ نیند میں ہی کین کا چہرہ سامنے دیکھتی بڑبڑائی۔ کین ابھی راستے میں ہی تھا جب کوئی اچانک اس کے کار کے سامنے آیا۔ مائیکل، سامنے آؤ، کین نے سرد آواز میں کہا۔ تو تم نے مجھے پہچان لیا، مائیکل نے کین کے پیچھے سے آ کر کہا۔ کیا تمہیں اپنی جان عزیز نہیں جو میرے سامنے آئے ہو؟ کین نے مائیکل کی گردن کو پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ کین، مائیکل کو چھوڑ دو، ورنہ تم جانتے ہو تمہیں اس کی کیا سزا مل سکتی ہے۔ جیک نے بھی پیچھے آتے ہوئے کین سے کہا، جو مائیکل کی گردن کو سختی سے پکڑ کر کھڑا تھا۔ جیک، تم جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو؟ میں ویمپائرز کی دنیا کے سب سے طاقتور ویمپائر، جتنی پاورز میرے پاس ہیں اتنی پاورز کسی بھی ویمپائر کے پاس نہیں۔ اور ہاں، اگلی دفعہ میرے راستے میں مت آنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میرا بھی کبھی کچھ رشتہ تھا تم دونوں سے۔ کین نے کہتے ساتھ ہی مائیکل کو گردن سے پکڑ کر دور اچھالا اور ایک سخت نظر مائیکل اور جیک کے اوپر ڈال کر چلا گیا۔ کین، مائیکل اور جیک بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، پھر اچانک ان کے بیچ کچھ ایسا ہوا کہ ان کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ ماضی: کین اور مائیکل بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، پر جیک صرف مائیکل کا دوست تھا، اسے کین پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ اسے دور ہی رہتا اور مائیکل سے اپنی دوستی نبھا رہا تھا۔ پھر مائیکل کی زندگی میں لیزا نام کی لڑکی آئی۔ لیزا ایک ویمپائر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ مائیکل اس سے بہت پیار کرتا تھا اور یہ بات کین کو بھی پتہ تھی، پر کین کو وہ لڑکی بالکل پسند نہیں تھی۔ کین جانتا تھا وہ مائیکل کو یوز کر کے کین کے قریب رہنا چاہتی ہے، اور یہ بات وہ خود کین کو بھی بتا چکی تھی، جس پر کین نے اسے بہت سخت غصے سے مارنے کی دھمکی بھی دی، اور مائیکل کو سچ بتانے کے بھی، جس پر لیزا نے کہا، مائیکل تمہاری باتوں پر کبھی یقین نہیں کرے گا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ پھر ایک دن کین جنگل میں کھڑا اپنے شکار کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک لیزا وہاں آ کر اس کو پیچھے سے گلے لگا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ کین نے اتنی ہی تیزی سے لیزا کو خود سے دور کرنا چاہا، پر تب تک مائیکل وہاں آ چکا تھا اور کین اور لیزا کو ایک ساتھ دیکھ چکا تھا، اور اسی دن سے مائیکل اور کین کے بیچ نفرت کی دیوار پیدا ہو گئی۔ مائیکل کین کو اسی طرح تکلیف دینا چاہتا تھا جس طرح اسے ہوئی، اور اس دن مائیکل نے کین کی آنکھوں میں الویزے کے لیے جو دیکھا، اسے لگا اس کا انتظار ختم ہوا، اور اب وہ بھی کین کو اسی طرح اس کی محبت کو اس سے دور کر کے اس کی محبت کو کیسے اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، اور پھر کین کی تکلیف پر اسے سکون ملنا تھا، اور اس میں جیک بھی اس کے ساتھ تھا۔ صبح وہ یونیورسٹی آیا تو الویزے اور مائیکل کو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے پایا۔ کین نے ان دونوں کو اگنور کیا اور لاسٹ سیٹ پر جا بیٹھا۔ ایلی، تم آج میرے ساتھ ڈنر پر چلو گی؟ کین ابھی اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ مائیکل کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ الویزے نے ہی مائیکل کو بتایا تھا کہ اس کے فرینڈ اسے ایلی کہتے ہیں۔ کین نے مائیکل کی آواز پر غصے سے اپنی آنکھیں بند کی۔ کین کی آنکھیں غصے سے چینج ہو رہی تھیں۔ پر مائیکل، الویزے نے کچھ کہنا چاہا، پر وہ کچھ نہیں، اب دوستی کی ہے تو دوستی کی اتنی بات نہیں مانو گی؟ مائیکل کی بات پر اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، جبکہ کین اس کی ہاں کرنے پر بے تاب کھا کے رہ گیا تھا۔ کلاس میں سر کے آنے سے خاموشی ہو چکی تھی۔ وہ کلاس لے کر باہر کی جانب نکلی۔ اس سے سر جیک کے پاس کوئی اسائنمنٹ جمع کروانی تھی۔ وہ بھی کارٹونیٹ میں پہنچی تھی کہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک کلاس کے اندر کھینچ لیا۔ کلاس میں اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے وہ سامنے کھڑے
शख्स को नहीं देख पा रही थी जिसने उसके मुंह पर इतने सख्ती से हाथ रखा था कि अलवेज़े को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, जिस पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माइकल, अलवेज़े ने कुछ कहना चाहा पर वो कुछ नहीं, अब दोस्ती की है तो कुछ नहीं, अब दोस्ती की है तो दोस्ती की इतनी बात नहीं मानोगी। माइकल की बात पर उसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, जबकि केन उसके हाँ करने पर पीछताप खा के रह गया था। क्लास में सर के आने से खामोशी हो चुकी थी। वो क्लास लेकर बाहर की जानिब निकली। उसने सर जैक के पास कुछ असाइनमेंट जमा करवानी थी। वो अभी कॉरिडोर में पहुंची थी कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर एक क्लास के अंदर खींच लिया। क्लास में अंधेरा था, जिसकी वजह से वो सामने खड़े शख्स को नहीं देख पा रही थी जिसने उसके मुंह पर इतने सख्ती से हाथ रखा था कि अलवेज़े को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, जिस पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें कहा था माइकल से दूर रहो, फिर तुम उससे बात क्यों कर रही थी? केन ने सर्द आवाज में पूछा, पर हाथ अभी भी नहीं हटाया था। अलविजे समझ गई थी कि सामने खड़ा शख्स कौन है। वो केन को उसके मुंह पर से हाथ हटाने के लिए इशारा कर रही थी, जिस पर केन ने सख्त असरात से उसके मुंह पर से हाथ हटाया। तुम होते कौन हो मुझे कुछ कहने वाले? मैं जिससे मर्जी बात करूं, आइंदा मेरे मामले से दूर रहना। अलवेजे ने अपना साथ दुरुस्त करते हुए कहा और क्लास के बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, माइकल से दूर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। और रही बात मेरी कि मैं कौन होता हूँ, तो डेयर ये तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। केन ने उसकी सारी बकवास सुनने के बाद उसे अपनी तरफ खींचकर अपने सामने खड़ा करके उसे अपनी बात कहकर बाहर निकल गया, जबकि अलवेजे समझ नहीं पाई थी कि केन क्यों उसकी माइकल से दूर रहने के लिए कह रहा था। वो इस वक्त कैफे में अपना काम कर रही थी। अलवेजे, बाहर कोई लड़का तुमसे मिलने आया है। मैरी ने अलवेजे को इतला दी। मेरी अलवेजे के साथ काम करती थी। मैं मैं देखती हूँ, अलवेजे ने हैरानी से कहा। आज तक उससे कोई भी रेस्टोरेंट में मिलने नहीं आया था। इसलिए दो ही तो दोस्त थी, एक मैरी जो इसके साथ काम करती थी और एक एलिफ एलिफ जो अपने गांव गई हुई थी। वो बाहर टेबलों की जानिब गई जहां माइकल बैठा हुआ था। माइकल तुम? ऑलवेजे ने माइकल को अपने सामने देखते हुए कहा। हाँ, वो आज तुमने मेरे साथ डिनर पर जाना था ना, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हें पिक कर लूँ। माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ठीक है, पर अभी मुझे 15 मिनट लगेंगे। ओके, आई एम वेटिंग, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। अलवेजे को माइकल की मुस्कुराहट कुछ अजीब लगी, पर वो नज़रअंदाज करती माइकल को इसका वेट का कहती अंदर चली गई। 10 मिनट के बाद अलवेजे अपना सामान समेट कर आई तो उसने सादा सी जीन्स पर ब्लू घुटनों तक आती शर्ट पहन रखी थी और बालों को डेली पोनी में कैद कर रखा था। माइकल ने अलवेजे को मुस्कुरा कर बाहर आने का कहा। वो बाहर माइकल के साथ उसकी कार में बैठ गई। अलवेजे ने माइकल से कहा था कि वो कुछ देर के लिए उसे उसके घर लेकर जाए ताकि वो एड्रेस चेंज कर सके। माइकल उससे किसी पार्टी में लाया था जहाँ सब लोगों ने ब्लैक ड्रेसिंग कर रखी थी। वो माइकल के साथ पार्टी में दाखिल हो चुकी थी जहां सब लोग उसे देख कम घूर ज्यादा रहे थे। इस वक्त उसने रेड मैक्सी पहन रखी थी जिसमें वो इस पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत और अलग लग रही थी। माइकल, तुम एक इंसान को किस तरह इस पार्टी में ला सकते हो? तुम्हें पता है ना, यहाँ सब वंपायर हैं। जिस तरह इस इंसान को देख रहे हैं, ये सब कैसे भी वक्त उसे मार सकते हैं। जैक ने माइकल के करीब जाते हुए आहिस्ता पर सर्द आवाज में कहा। अलवेजे भी माइकल के साथ खड़ी सब लोगों को देख रही थी जो उसे सख्त नजरों से देखते उसे खौफजदा कर रहे थे। अलवेजे को ये जगह बहुत अजीब लगी और फिर वो ये सब लोग उसे मजीद खौफजदा कर रहे थे। रिलैक्स जैक, ये सब वंपायर इस पार्टी में अलवेजे को कुछ नहीं कर सकते और अलवेजे को मैं अपने दुश्मन को दिखाने के लिए लाया हूँ जो उसे मेरे साथ जैक जल कर राख हो जाएगा। माइकल ने मुस्कुराते हुए अलवेजे की तरफ देखकर आहिस्ता से जैक से कहा था। माइकल, तुम मुझे इस पार्टी में क्यों लाए हो? अलवेजे ने माइकल के करीब जाते हुए कहा। और बस इसी वक्त केन इंटर हुआ और अलवेजे को माइकल के करीब जाते हुए देख लिया और फिर उसने
बाकी सब वम्पायर्स की तरफ देखा जो अलवेजे को लाल आंखों से घूर रहे थे। उसने गुस्से से सुर्ख आंखों से सब की जानिब देखा तो सब उसके गुस्से से डर कर अलवेजे की तरफ से नजरें हटा लीं और वो गुस्से से अलवेजे की जानिब बढ़ा जो माइकल की जानिब हैरानी से देख रही थी क्योंकि माइकल उसे प्रपोज कर चुका था और अब 1 घंटे पर घुटने पर बैठा उसके जवाब का मुंतजिर था। इससे पहले अलवेजे कोई जवाब देती केन ने उसे सख्ती से बाजू से पकड़कर अपनी जानिब किया। वो तो केन को भी इस पार्टी में देखकर हैरत सी केन की लाल आंखों में देख रही थी। अलवेजे को इस वक्त केन से शदीद खौफ महसूस हुआ। केन अलवेजे को लिए बाहर की जानिब बढ़ने लगा लेकिन उससे पहले ही माइकल उसके सामने आ गया। केन ने शदीद गुस्से में माइकल की जानिब देखा। माइकल, मेरे रास्ते से हटो वरना अच्छा नहीं होगा, केन ने धारते हुए कहा। वो इस वक्त इस कदर गुस्से में था कि उसने अलवेजे को भी इतनी सख्ती से पकड़ा था जिसकी वजह से अलवेजे इसके खौफ से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। वो तो बस खौफजदा सी केन को देख रही थी। नहीं नहीं हटूंगा, तुम अलवेजे को इस तरह नहीं ले जा सकते, वो मेरे साथ आई है और जाएगी भी मेरे साथ, माइकल ने कहते साथ ही अलवेजे की तरफ अपना हाथ बढ़ाते ही उसे अपनी तरफ खींच न चाहा पर उससे पहले ही केन ने माइकल का हाथ पकड़कर दूर उछाला और डरी सहमी अलवेजे का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। पर उससे पहले वो बाहर जाता अलवेजे के पैर में एक नोकीली चीज लगी जिस पर उसके पैर में से खून की बूंद तेजी से बहने लगी। अलवेजी की आंखों से तकलीफ के आंसू बहने लगे। वो नोकीली चीज बहुत तेज थी और अलवेजी को बहुत शदीद दर्द महसूस हो रहा था। केन ने अलवेजी की आंखों में आंसू देखे और फिर उसके पैर को देखा जहाँ से अभी भी खून बह रहा था। उसे जल्दी से यहाँ से निकलना था वरना यहाँ के वम्पायर अलवेजे के खून की खुशबू सूंघकर किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकते थे। वो अलवेजे को एक नज़र देखकर फिर बाहर की जानिब जाने लगा। केन प्लीज, मैं नहीं चल सकूंगी। अलवेजे ने नीम आंखों से पहली दफा नजर उठाकर केन की जानिब देखा था। इससे पहले केन अलवेजे को अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले जाता सब वम्पायर को अपनी जानिब आता देख उसकी आंखें मजीद लाल हो गई। सब अंपायर अपना कंट्रोल खोकर अलवेजी की जानिब अपनी असली रूप में आते हुए भरने लगे। अलवेजी ने अजीब आवाज़ों पर अपने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें खौफ और हैरत से फट गई। वो अपने पीछे इतने सारे वम्पायर्स देखकर खौफजदा सी अपने पैर पीछे की जानिब बढ़ाने लगी लेकिन फिर उसे रुकना पड़ा। उसकी कमर केन के सख्त सीने से लगी थी। उसने जल्दी से मुड़कर केन की जानिब देखा जो लाल आंखों से सब वम्पायर्स को घूर रहा था। इससे पहले कोई भी वम्पायर अलवेजे के ऊपर हमला करता केन ने जल्दी से अलवेजे का बाजू पकड़कर अपने सीने से लगाया। अब सिचुएशन ये थी कि वो केन के सीने में अपना चेहरा छुपाए अपने पीछे खड़े वम्पायर्स को भी नहीं देख पा रही थी। उसे इस वक्त केन ही अपना मुहाफिज लगा जो उसके गिर्द अपना एक हाथ सख्ती से बांधे खड़ा था। उसने भी अपने बाजू सख्ती से केन के गिर्द बांध लिए। केन ने एक हाथ अलवेजे के गिर्द मजबूती से बांधा और दूसरे हाथ से अपनी तरफ बढ़ते हुए वम्पायर्स पर हमला कर रहा था। वो जानता था वो सब वम्पायर्स मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। थोड़ी ही देर में वो सब वम्पायर्स को नढाल कर चुका था। माइकल और जैक तो उससे इतने गुस्से में देखकर वहां से गायब हो चुके थे। सब वम्पायर्स जानते थे वो सब मिलकर भी केन का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए जल्द ही सब ने हार मान ली। अलवीज़ तो उसके सीने से लगी बेहोश हो चुकी थी, इसीलिए सब नाकाबिले यकीन था। वो एक आम इंसान थी और इस दौर में वम्पायर का वजूद होना नाकाबिले यकीन था, पर वो सब अपनी आंखों से देखकर काफ़ी खौफजदा होकर बेहोश हो चुकी थी। केन उसे लिए अपनी कार की तरफ बढ़ा। पहले उसे बेहोश अलवेजे को फ्रंट सीट पर बिठाया और सीट बेल्ट बांधा और फिर अपनी सीट पर बैठकर कार तेजी से आगे बढ़ाने लगा। पहले वो समझता था कि अलवेजे के खून ने उसे मुतवज्जो किया, हाँ, पर फिर अलवेजे का एक्सीडेंट पर जिस तरह उसे तकलीफ हुई थी, बेशक अलवेजे को कोई चोट नहीं लगी थी पर केन का तो दिमाग ही ये सोचकर पागल हुआ था कि अगर अलवेजे को कुछ हो जाता तो। और फिर माइकल का अलवेजे से बात करना उसे बहुत गुस्सा आया था और आज तो इसकी गलत फहमी भी दूर हो चुकी थी कि उसे अलवेजे के खून की तलब है। आज जब सब अलवेजे का खून देखकर अपना कंट्रोल खो बैठे थे, वही उसे अलवेजे के खून को देखकर उसकी तकलीफ अपने दिल पर महसूस हुई थी। उसे
آلویزے کے خون دیکھ کر بھی کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، وہ اگر کچھ محسوس ہوا بھی رہا تھا تو صرف اس کی تکلیف شدید محبت ہوتی ہے، تکلیف شاید اسے محبت کہتے ہیں، ایسے بیچارہ پھر وہ انسان کے ہو یا ایک ویمپائر کی۔ کین نے سوچتے ہوئے الویزے کے چہرے سے اپنی نظر ہٹائی اور ڈرائیونگ پر دھیان دیا۔ اس وقت وہ رات کے اندھیرے میں جنگل کے راستے پر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ الویزے ابھی تک بے ہوش تھی، وہ ابھی تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ مائیکل اسے بیچ راستے پر کھڑے ملا۔ وہ غصے سے کار سے باہر نکلا، اس کے غصے سے دروازہ بند کرنے کی آواز پر الویزے بھی ہوش میں آ چکی تھی اور سہمی نظروں سے کار کے باہر مائیکل اور کین کو لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کین اور مائیکل اس وقت اپنے اصلی روپ میں لڑ رہے تھے۔ کیوں مجھ سے میرا پیار چھینا؟ اب جب خود کا پیار تم سے دور جا رہا ہے تو ہو رہی ہے نا تکلیف؟ سوچو، مجھے بھی تو ہوگی تکلیف، بلکہ تم سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ بتاؤ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ جب وہ کین سے لڑ نہیں پایا تو نیم آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ کین کو اس کی تکلیف اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ کین نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ مائیکل، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ اور پھر کین نے اسے وہ ساری سچائی بتائی جس سے وہ انجان تھا۔ کین نے پہلے کبھی بھی اسے سچائی نہیں بتائی تھی اور وہ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے دکھ تھا کہ اس کے دوست نے کیسے اس پر شک کر لیا، اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی مائیکل کو سچائی نہیں بتائے گا۔ تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مائیکل نے ساری سچائی جان کر دکھ سے کہا۔ کیونکہ مجھے لگا تھا میرا دوست مجھ پر کبھی شک نہیں کرے گا، پر تم نے مجھ پر شک کیا اور پھر میں نے بھی اس شخص کو دور نہیں کیا۔ مجھے لگا تم خود مجھ سے کبھی کچھ پوچھنے آؤ گے تو میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، پر تم نے تو سیدھا مجھ سے دشمنی کر لی۔ کیا مجھے میرا دوست دوبارہ مل سکتا ہے؟ کین کے قدم مائیکل کی آواز پر تھمے اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں مائیکل بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہارا دوست ہمیشہ سے تمہارے پاس ہے، کین نے مسکراتے ہوئے مائیکل کو گلے لگا کر کہا۔ اچھا اب بس، بھابھی ہوش میں آ چکی ہے، جا اس کے پاس جا، ورنہ مجھے لگتا ہے وہ پھر سے بے ہوش ہو جائیں گی، مائیکل نے ہنستے ہوئے کہا اور اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ کین بھی اس کے بات پر ہنستے ہوئے پلٹا اور کان کی جانب بڑھا جہاں الویزے خوف اور حیرانی سے کین کو دیکھ رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہوگی، پر کین کو سچ میں اپنے ساتھ دیکھ اور اس کی اصلیت جان کر وہ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ کین خاموشی سے کار ڈرائیونگ کرنے لگا اور الویزے خوفزدہ سی اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کین اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، پر اب وہ اس کی اصلیت جان چکی تھی اور اسے خوفزدہ بھی تھی۔ پر ایک بات کین کو بھی پتہ تھی کہ الویزے بھی اسے چاہنے لگی تھی اور یہی بات اس کے لیے سکون کا باعث تھی۔ کین نے الویزے کے گھر کے باہر کار روکی۔ اس سے پہلے الویزے باہر نکلتی کین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ خوفزدہ سی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے پتہ ہے الویزے، تمہیں اس وقت مجھ سے ڈر لگ رہا ہے، پر تم میری اصلیت بھی جان چکی ہو، پر تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم تو اب میری زندگی ہو، میں تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں، مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ مجھے پیار بھی ہو سکتا ہے، پر یہ سچ ہے تم نے میری بے جان دل میں جان ڈال دی ہے، اب یہ دل بھی کسی کے لیے دھڑکنے لگا ہے اور تمہارے ساتھ کی آرزو کرنے لگا ہے۔ پلیز الویزے، میں جانتا ہوں ہمارے بیچ بہت فرق ہے، پر میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں کل تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ کین نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کین کے ہاتھ چھوڑتے ہی وہ جلدی سے کار سے باہر نکلی اور اپنے گھر داخل ہوئی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ سب سچ تھا۔ کین ایک ویمپائر تھا اور وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا۔ اتنے عرصے بعد اسے کوئی خوشی ملی تھی، پر شاید وہ بھی اس کی قسمت میں نہیں تھی، پر وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی صبح کین سے مل کر اسے اپنا فیصلہ سنانے کا سوچتی سونے لگی، پر اب شاید اسے نیند نہیں آنی تھی۔ وہ ساری رات کین کے بارے میں سوچنے لگی اور ایک فیصلے پر پہنچ کر اس نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر کے وہ سو گئی۔ 10 منٹ میں ہی وہ گہری نیند میں سو رہی تھی، تبھی اس کی کھڑکی سے کوئی اندر داخل ہوا۔ مائی ہارٹ، کین نے الویزے کو سکون سے سوتے ہوئے دیکھ کر کہا اور اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیوانوں کی طرح دیکھنے لگا۔ اب یہ سلسلہ تو ساری رات چلنا تھا۔
وہ इस वक्त जैक के पास बैठी जेल के पास बैठी साफ नीले पानी को देख रही थी। वो हमेशा से इस जगह आती थी, उसे ये सुकून वाली जगह बहुत पसंद थी। यहाँ पर कम ही लोग पाए जाते थे। तभी कोई उसके पास आकर बैठा। अलवेजे जानती थी वो कौन है। तो तुम्हारा जवाब क्या है? केन ने अलवेजे की जानिब देखते हुए कहा, जो पानी को देख रही थी, तुम सच में एक वम्पायर हो? अलवेजे ने उसकी बात को नज़रअंदाज करके सवाल किया, क्या कल रात तुम नहीं जान पाई जो अब मुझसे ये सवाल कर रही हो? जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। आपके बाद अलवेजे ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, मैं एक बहुत ही ताकतवर वम्पायर हूँ। केन ने उसकी आंखों में देखते हुए सच कहा, और मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ, बहुत, अपनी जान से बढ़कर तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और अगर कभी तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हुआ तो? अलवेजे ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर तुमने कभी मेरा खून पिया तो? अब की दफ़ा अलवेजे की आंखों में खौफ वाज़े था, जो केन ने भी नोट किया। पहली बात तो मैं वम्पायर ज़रूर हूँ, पर मैं हसीन लड़कियों का खून नहीं पीता। केन ने आंखों में शरारत लिए उसे देखकर कहा, जो अपने चेहरे पर खौफ लिए लिए और भी खूबसूरत लग रही थी। मतलब तुम खून पीते हो, और अगर तुम्हें किसी और का खून ना मिले तो तुम मेरा भी खून पी सकते हो? अलवेजे ने खौफ से कहा। अलवेजे, देखो यार, मैं एक वम्पायर ज़रूर हूँ, पर मैं ऐसे ही किसी भी इंसान की जान नहीं लेता। मैं खून ज़रूर पीता हूँ, पर वो भी बहुत कम। मैं भी तुम तुम्हें इंसानों की तरह बाकी हर चीज़ खाता हूँ, और खून भी मैं अस्पताल से पेमेंट करके लेता हूँ। केन ने अब की दफ़ा उसके खौफजदा चेहरा देखकर सच बताया, जिस पर अलवेजे के चेहरे पर भी सुकून छा गया। ठीक है, तुम तो आज से फिर तुम वो थोड़ा सा भी ब्लड नहीं पियोगे? माई हार्ट, अगर मैं थोड़ा सा भी ब्लड नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। केन ने संजीदगी से अपना मसला बयान किया। ठीक है, पर तुम बिल्कुल थोड़ा ही ब्लड पी सकते हो। ओके माय स्वीट हार्ट। केन ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया, जिस पर अलवेजे भी मुस्कुराती इसके हाथ पर अपना हाथ रख लिया और उसके साथ आगे बढ़ने लगी। आई रियली लव यू माई हैंडसम वम्पायर। अलवेजे ने उसके साथ चलते हुए अपनी खूब मोहब्बत का इजहार किया, जिस पर केन के लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ ठहरी। आई लव यू टू माई लव माई इनोसेंट लेडी। केन ने भी उसके मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया, और दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगे। केन चाहता तो अलवेजे को भी अपने जैसा वम्पायर बना सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहता था जैसे अलवेजे है वैसे ही रहे। जब मोहब्बत में अलवेजे ने उसे उसकी असली रूप से में कबूल किया था, तो वो क्यों उसे तकलीफ देता? वो जानता था वम्पायर की लाइफ इंसान बिल्कुल भी नहीं है। वम्पायर के लिए खून बहुत ज़रूरी होता है, और उसे खुद को बहुत टाइम लगा था अपने आप को कंट्रोल किए, और वो तो फिर भी एक एक उम्मी इंसान थी। अगर वो वम्पायर बन जाती जाती तो उसे खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, और केन अलवेजे को कैसे मुश्किल में नहीं देखना चाहता था। वो सच्ची मोहब्बत करता, और सच्ची मोहब्बत भी वही है जो अपने महबूब को वैसी ही कबूल करे जैसा वो है। यही तो सच्ची मोहब्बत की निशानी है।